So, Ms. Avantika, we continue our journey of this non-ideal behavior of gases. So, in last lecture, we discussed in detail a lot of things, and I'll just touch point on the things that we discussed. We discussed in detail the kinetic molecular theory of gases. Now, in kinetic molecular theory of gases, we understood that there were few points due to which there would be a difference between the behavior of an ideal and a real gas. Mr. Avantika, are we clear? Yeah. So, for example, when the kinetic molecular theory of gases, these were the two gentlemen who worked on this, Mr. Maxwell and Mr. Boltzmann. Now, when they were working on the kinetic theory of gases, basically kinetic theory of gases, when we say, when they were trying to derive this PV is equal to nRT, they made some assumptions. So, for example, one of the assumption was that the molecules of gas are so small that the molecules of gas won't affect the actual volume of the basically the total volume of the gas. So what they assumed was कि यार अगर एक container है, if this is a if this is a container, they said कि molecule का जो volume है that is so small that it won't affect the total volume of the gas. So what they were trying to say is कि if this gas is 1 liter, मतलब ये जो container गैस नहीं बोलना चाहिए, this container is 1 liter. तो इसमें जो molecules हैं उसके उसका जो volume होगा वो बहुत ही negligible होगा. Let us assume 1/10,000 liter. Mr. Vantika, are you clear? Are we clear? Yeah. So this was the assumption that they were working on, which would be troublesome for them when they face reality. The second thing that they were assuming was that the molecules of a gas do not attract each other. Second thing that they were assuming was कि यार ये जो molecules हैं because they are in random motion और इनकी अच्छी kinetic energy काफी ज़्यादा है, so they will keep moving. They won't talk to each other. In simple language, they won't talk to each other. Mr. Vantika, are we clear? Yeah. तो उन्होंने ये assumptions ली kinetic theory of gases में, and they were able to derive at this PV is equal to nRT. And then last time what we were discussing is कि यार in reality ऐसा तो होता नहीं. And then we went on to describe this compressibility factor, which you had defined as Z is equal to PV by nRT. So one thing, are we clear till here? Yeah. Okay, जब and then there were two graphs that I had shown, and then I told you कि आज के lecture में हम थोड़ा detail में बात करेंगे. So for example, let us look at these graphs again. So this is the graph of the compressibility factor Z and the pressure. अभी अगर आप देखेंगे this what does this Z is equal to 1 implies? Z is equal to 1 implies कि ये वो गैस होगी जिसमें PV जो है वो nRT के बराबर होगा. And as soon as PV is equal to nRT, Z is equal to 1. Mr. Vantika, are we clear? Yeah. So this line would be followed only by gases which are ideal. Are we clear? Yeah. But of course, in reality, when we see gases, so for example, nitrogen, hydrogen, CO2, helium, when the experiments were done at constant temperature but at varying pressures. So if you see, I have called these isotherms. Why am I calling these isotherms? Because जो टेम्परेचर है, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ, केस 1 जो हुआ, उसमें क्या किया गया कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा गया. डिफरेंट बिहेवियर ऑफ डिफरेंट गैसेस वाज स्टडीड एट वेरिंग प्रेशर. Mr. Vantika, am I making sense? Yes. लेट मी रिपीट. आपने नाइट्रोजन गैस ली. अब जो नाइट्रोजन गैस आपने ली दैट इज एट 300 केल्विन. तो आपने PV इज इक्वल टू nRT में जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट कर दिया, आपने उसको 300 केल्विन कर दिया. आर वी क्लियर? Yeah. जो R है वो तो कांस्टेंट ही होता है. एंड लेट अस अज्यूम यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ गैस. 1 मोल ऑफ गैस, तो आपने जो N है उसको 1 कर दिया. तो व्हाट यू आर अज्यूमिंग वाज कि हर टाइम जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है दैट वुड बी इक्वल टू RT. And because RT is constant, so this should be constant. Am I making sense? Yeah. So what you were assuming was कि जो pressure और volume का जो product होगा वो same होगा. But in reality what they saw was कि वो जो product है that वो constant नहीं रहता. It keeps on changing. Am I making sense? Yeah. So Z is equal to PV upon nRT. अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो Z है वो 1 तभी रह सकता है अगर ये PV हमेशा nRT के बराबर रहे, इक्वल रहे. बट अगर PV जो है आप प्रोडक्ट आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं बट वॉल्यूम उसके कंपैरेटिवली चेंज नहीं हो रहा,
तो z की जो वैल्यू है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि थोड़ी देर तक टू अ सर्टेन लेट अस अज्यूम अराउंड 100 एटमॉस्फेयर, 100 एटमॉस्फेयर तक जो z की वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाती है. दैट इंप्लाइज कि जो pv की वैल्यू है वो nrt से लेस हो जाती है. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Yeah. और फिर धीरे धीरे एट दिस टेम्परेचर एट अराउंड 200 एटमॉस्फेयर फिर से जो पीवी की वैल्यू है वो एनआरटी के बराबर होती है. एंड दैट इज वाई यू सी दिस पॉइंट जहां पर की वैल्यू 1 होती है. एंड देन अगेन आफ्टर 200 डिग्री आफ्टर 200 एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये साइड आप प्रेशर ले रहे हैं, जो पीवी की वैल्यू है जो न्यूमरेटर है वो फिर से डिनोमिनेटर से बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है. एंड दैट इज वाई यू सी दिस वैल्यू ऑफ z टू बी ग्रेटर देन 1. भाई ये भी समझ आ रहा है नहीं यार? जी. Now, the overall point that Avantika I'm trying to make is कि अगर ये आइडियल गैस होती तो हर प्रेशर पे at every pressure the the graph of nitrogen should have been like this. ऐसा ग्राफ होना चाहिए था, बट ऐसा ग्राफ नहीं है. जो ग्राफ है वो बन रहा है ऐसा. Am I making sense? This is what was observed in reality. Am I making sense? Yeah. And then they try to see कि यार प्रेशर पे तो हमने देख लिया कि प्रेशर पे क्या हिसाब किताब हो रहा है. सो अभी हम क्या करते हैं, अभी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप कि जो गैस है वो कैसे बिहेव करती है. अब हम क्या करेंगे वेरियस टेम्परेचर्स पे. सो 200 केल्विन, 500 केल्विन, 1000 केल्विन, वेरियस टेम्परेचर्स पे हम स्टडी करेंगे द बिहेवियर ऑफ N2. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप यहां देखेंगे, यहां पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा गया और जो प्रेशर है उसको वेरी किया गया. टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, बट यहां पर अगर आप देखेंगे सो व्हाट यू विल सी इज वन सेकंड. सो that is what I was trying to tell you yesterday, because this is the first time you are seeing these kind of graphs. क्लास 10th में तो ऐसे ग्राफ नहीं थे, तो क्लास 11 में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी. सो दिस इज हाउ अ ग्राफ इज रेड कि अगर आप यहाँ देखेंगे दिस इज एट 300 केल्विन, बट आप जो रिलेशनशिप है वो ये देख रहे हैं कि प्रेशर का रिलेशनशिप गैस का कैसा है. बट अगर आप नीचे वाला ग्राफ देखेंगे यू विल सी द प्रेशर इज चेंजिंग एंड दिस इज द ग्राफ फॉर नाइट्रोजन गैस ओनली. ये सिर्फ नाइट्रोजन गैस का ग्राफ है एट वेरियस टेम्परेचर्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये वाला जो है ये अगर आप देखेंगे दिस इज द लाइन फॉर नाइट्रोजन एट 200 केल्विन. मिस अवंतिका, एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. बेसिकली ये वाली जो लाइन है ना यार, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये 300 केल्विन की नाइट्रोजन की लाइन है. 300 केल्विन की नाइट्रोजन की लाइन है, ये आपको यहाँ दिख रही है. ये 200 और 500 और आई थिंक मतलब वी कैन सेफली अज्यूम कि जो 300 की लाइन होगी वो अप्रोक्सीमेटली ऐसी होगी. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? सो ये जो लाइन है, Yeah. ये 300 केल्विन की जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये 300 केल्विन वाली लाइट है. भाई सभी समझ आया? जी. अब फिर से अवंतिका, वन थिंग दैट वाज ऑब्जर्व्ड वाज, लेट मी रब दिस अगेन, वन थिंग व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड वाज कि यू नो अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखेंगे, अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखेंगे 1 का, तो वो तो यार जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो एट एनी टेम्परेचर 200 केल्विन ले लीजिए, 500 केल्विन ले लीजिए, 1000 केल्विन ले लीजिए, वो हमेशा लो प्रेशर जब होगा, वेरी लो प्रेशर होगा, तभी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 होगा. उसके बाद कोई भी प्रेशर आप लेंगे और कोई भी टेम्परेचर लेंगे वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दोबारा से 1 नहीं होता. एम आई मेकिंग सेंस अवंतिका? मतलब Yeah. एट एनी अदर टेम्परेचर और एनी अदर प्रेशर ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल नहीं होते, वो कैंसिल नहीं होते. तो या तो वो लेस देन 1 हो जाता है या वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज इन फ्रंट ऑफ मिस्टर वेंडरवॉल कि यार ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ क्यों रहा है, व्हाई इज इट दिस हैपनिंग. कि जो रियल आप जो ये जो काइनेटिक थ्योरी के जो भाई लोग थे मिस्टर मैक्सवेल एंड मिस्टर बोल्ट्जमैन, इन्होंने ये जो रिलेशन डिराइव किया, जो मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी उन्होंने बोल दिया. बट हम जब उसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जो जेड की वैल्यू है वो सिर्फ लो प्रेशर पे, आप मेरी बात समझ रहे हैं, लो प्रेशर पे. एंड देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इफ यू आर एबल टू मेक आउट, लो प्रेशर तो दिख रहा है, वेरी लो प्रेशर, ये देखिए लो प्रेशर पे 1 के आसपास है. बट देन इफ देयर इज इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू विल सी नाइट्रोजन में एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ये 1000 केल्विन पे अगर आप देखेंगे जो लाइन है, अगर आप देख रहे हैं जो लाइन है धीरे धीरे आइडियल की तरफ जा रही है. मैं समझ एम आई मेकिंग सेंस? कैन यू सी दिस? Yeah. आई रिपीट, लो टेम्परेचर पे
लो टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की लाइन ये नाइट्रोजन की लाइन है। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर हाई करते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो लाइन है वो आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रही है। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, बट लेट अस अज्यूम कि आप 1000 से ऊपर चले जाते हैं, 1000 से ऊपर, 1000 के ऊपर केल्विन पे जाते हैं। सो आई थिंक व्हाट वी ऑल थ्री ऑफ अस कैन सेफली अज्यूम इज कि ये जो लाइन है ये और भी आइडियल बिहेवियर के पास आ जाएगी। एम आई मेकिंग सेंस? समझते? Yes. सो व्हाट द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर सेइंग इज कि यार एट लो प्रेशर मतलब यहाँ पर 1 के आसपास, मतलब ये देखिए ये लो प्रेशर है, ये यहाँ पर लो प्रेशर मतलब ये देखिए ये यहाँ पर ये वाले रेंज में, ये वाले रेंज में। तो किसी भी टेम्परेचर पे आप z की जो वैल्यू है इट इज क्लोज टू 1। सिमिलरली व्हेन द गैस इज एट हाई टेम्परेचर, जब उसका टेम्परेचर आप हाई करना शुरू करते हैं तो वो फिर से वो आइडियल बिहेवियर की तरह, मतलब ये वाली लाइन को टच करना शुरू कर देती है। वैसे भी समझ आ रहा है? जी। सो दिस इज हाउ दीज ग्राफ्स आर रेड, एंड दिस इज व्हाट मिस्टर वेंडरवॉल केम टू अ कंक्लूजन कि यार ऐसा है कि ये तो जो मेरे सीनियर्स ने या जो मिस्टर मैक्सवेल और मिस्टर बोल्ट्जमैन ने जो स्टडीज की हैं वो तो यार लो प्रेशर पे और फेयरली हाई टेम्परेचर पे जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है वो सिर्फ इन पे वाइबल है। बट जैसे ही आप प्रेशर हाई करते हैं, जैसे ही आप प्रेशर हाई करते हैं, ये देखिए जैसे ही आप प्रेशर हाई कर रहे हैं, जो आइडियल बिहेवियर है, जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर से दूर से दूर से दूर ही जाती जा रही है। डू यू एग्री टू दिस? ये देखिए जैसे ही प्रेशर हाई हो रहा है, ये देखिए ये ज्यादा प्रेशर पे द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड द प्रैक्टिकल वेरीज अ लॉट। एम आई मेकिंग सेंस? यहां पर भी आप देखेंगे कि लेट अस अज्यूम जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आइडियल बिहेवियर से दूर जाते जा रहे हैं यहां पर भी। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करने से आप आइडियल बिहेवियर से दूर जा रहे हैं, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप आइडियल बिहेवियर के पास जा रहे हैं। वैसा बनती है। एम आई मेकिंग सेंस? Yes. सो दिस इज द सेकंड कंक्लूजन दैट ही केम टू कि यार हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे कुछ गड़बड़ हो रही है। ये देखिए नाइट्रोजन 200 केल्विन पे कितना दूर है आइडियल से, और जैसे ही 1000 केल्विन में है ये देखिए डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड द रियल। ये देखिए ये गैप देखिए। तो वी एग्री टू द द कंक्लूजंस। Yes. Yes, sir. And then that is what Mr. Van der Waal said in 1873. He pointed that यार ये deviation जो है ना रियल और आइडियल में वो बेसिकली दो चीजों पे हो रही है। एक तो हमने जो मेरे सीनियर्स ने जो इनसे पहले जो काम कर रहे थे उन्होंने दो assumptions जो ली थी। पहली assumption द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, और दूसरा द मॉलिक्यूल ऑफ गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एंड मूव इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। उन्होंने बोला कि यार ये जो दो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये जो थर्ड और फोर्थ assumption ली गई थी इसमें कुछ झोल है, तो हमें इसको थोड़ा अगर मॉडिफाई कर पाए तो देन इफ वी आर एबल टू चेंज द इक्वेशन, वो थोड़ा जो आइडियल गैस की जो इक्वेशन है अगर उसमें कुछ प्लस माइनस कर सकें तो शायद वी विल बी एबल टू प्रोडिक्ट द इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई करके देन वी माइट बी एबल टू कम टू कुछ मॉडिफिकेशन करके, मतलब पी में अगर कुछ प्लस माइनस एक्स कर दिया जाए या वी में अगर कुछ प्लस माइनस वाई कर दिया जाए तो शायद हम किसी एक नई इक्वेशन बना सकें जो कि रियलिटी को, रियल गैसेस को मिरर करेगी। एम आई मेकिंग सेंस? Yes. देखिए एक बात समझिए कि आप एक थ्योरी बनी हुई है, एक थ्योरी बनी हुई है, लेट अस एक थ्योरी भी छोड़िए, एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। आपके घर में है, लेट अस अज्यूम ऐसे कर लीजिए जैसे ये आज मिस्टर शिवांग ने क्या किया है, चमत्कार किया है, इन्होंने टीवी तोड़ दिया। मिस्टर वंतिका, आर यू शॉक्ड? मिस्टर वंतिका, एम आई ऑडिबल? समझी नहीं। सो मिस्टर शिवांग ने टीवी तोड़ दिया, ही हैज क्रैक्ड द टीवी। Okay. उसका रीजन तो पता नहीं बट टीवी टूट चुका है। सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट आई गो टू द मैकेनिक एंड ही टेल्स मी कि सर जो जो स्क्रीन आएगी वो 15,000 की आएगी। एम आई मेकिंग सेंस? वंतिका? Yeah. एंड द अदर मैकेनिक सेज कि नहीं सर जो स्क्रीन है वो 3,000 की आ जाएगी। एम आई मेकिंग सेंस? No. तो ये तो यार अगर मुझे उसको ठीक कराना है उसके चार्जेस है। बट लेट अस अज्यूम कि जो न्यू टीवी मुझे मिलेगा वो लेट अस अज्यूम 20,000 का मिल जाएगा, और यहाँ पर भी न्यू टीवी 20,000 का मिलेगा। सो मिस्टर वंतिका, शुड आई गो फॉर दिस और शुड आई गो फॉर दिस? शुड आई गो फॉर दिस? जी बताइए। हाँ हाँ लग सकता है। मिस्टर वंतिका, should I give 50,000? 15,000 is the repair cost. Should I give 15,000? Or if the repair cost is 3,000, then should I spend 20,000?
What do you suggest, Mr. Vantika? Mr. CB? The fair cost अगर like जैसा आपने बताया था, if it is greater than 40% तो मैं नया टीवी लेना. तो नया टीवी लेना. So that is what Mr. Van der Waal said कि यार अगर ये PV इक्वल टू NRT है, अगर इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके इफ मैं उसको चेक करता हूँ कि क्या रियल गैसेस के हिसाब के साथ वो मिरर कर रहा है नहीं कर रहा, तब तो ठीक है. अदरवाइज वी विल हैव टू मेक सम न्यू थ्योरी. एम आई मेकिंग सेंस, मिस्टर Vantika? Yeah. So basically the story is, so he did some modifications. I'll show you the modification first and then I'll explain rest of the things. So basically this is the modification that he did. He said that this is a factor, ये a upon v square एक फैक्टर है जो हमें ऐड करना पड़ेगा और ये b एक फैक्टर है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. Am I making sense? Yeah. You have to remember that n is equal to 1. ये एक मोल ऑफ गैस के बारे में बात हो रही है. वैसे भी समझ आ रहा है? जी. So basically what Mr. Van der Waal said कि यार ऐसा करेंगे कि आप जो PV इक्वल टू NRT है ना, उसमें एक तो वॉल्यूम करेक्शन कर लीजिए. So वॉल्यूम करेक्शन मतलब कि आप V में से सब्ट्रैक्ट दिस फैक्टर एंड ही सेड कि यू डू अ प्रेशर करेक्शन. आप एक प्रेशर करेक्शन कर दीजिए और एक वॉल्यूम करेक्शन कर दीजिए. मिस्टर Vantika, am I making sense? Yeah. तो प्रेशर करेक्शन करने के लिए यू विल हैव टू ऐड सम फैक्टर. अब इसमें वन थिंग दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इज दैट ए एंड बी आर सम कांस्टेंट्स. वो कांस्टेंट डिराइव कर दिए जाते हैं, आपको दे दिए जाते हैं. आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज कांस्टेंट्स मच, बट दीज वुड बी गिवन टू यू. सो what Mr. Van der Waal suggested कि यार न्यू इक्वेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, we don't have to buy a new TV. So he said कि you don't have to buy a new TV. What we'll do is there is a small correction which is required. 3,000 का खर्चा होएगा और ये सब करने की जरूरत नहीं है. So you will be able to this TV will work fine. Mr. Vantika, am I making sense? Yes. Okay. So अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने डिटेल में बात की थी कि यार होता ये है. So ideal, you can note this down because you will keep forgetting this initially, but then you will understand. So ideal behavior जो होता है वो pressure temperature. तो ideal behavior जो है ये सीबी से देखते हैं कि if he remembers correctly, भाई प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए ideal behavior के लिए? प्रेशर कम होना चाहिए. प्रेशर कम होना चाहिए ना. if you remember the graphs, जब प्रेशर कम था तो z is equal to 1 के आसपास गैसेस थी. मिस्टर Vantika, do you agree? Yeah. और सीबी टेम्परेचर में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमने जो नाइट्रोजन वाला देखा था उसमें एज द टेम्परेचर वाज इंक्रीजिंग, मतलब 1000 डिग्री आई थिंक केल्विन तक जब हम पहुंच गए थे तो उसमें थोड़ा जो ग्राफ है वो इस साइड शिफ्ट होना शुरू हो गया था. तो टेम्परेचर शुड बी हाई. मिस्टर Vantika, am I making sense? Yeah. तो इसका इनवर्स कि प्रेशर हाई होगा और अगर टेम्परेचर लो होगा तो जो गैसेस हैं वो मतलब रियलिटी की तरफ भागेंगी. भाई बात समझ आ रही है मेरी? Yeah. And then of course because Mr. Van der Waal had to suggest a theory behind it, उन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि भाई ऐसा करोगे तो हो जाएगा, but then he had to justify कि ऐसा हो क्यों रहा है, because otherwise why should people believe on what he is saying? So the justification that he gave was कि यार ऐसा है कि let us take this piston, ये पिस्टन ले लीजिए. अभी जब प्रेशर एक प्रेशर ये है 1 एटमॉस्फेयर और इसके बाद आपने क्या किया, पिस्टन को पुश करके आप नीचे ले गए, यहाँ पर ले गए और लेट अस अज्यूम आपने जो प्रेशर है वो 100 एटमॉस्फेयर कर दिया. मिस्टर Vantika, am I making sense? Yeah. अब ये होगा ये कि पहले तो वो खुले डोले मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे, बट एज यू क्रैम्प द मॉलिक्यूल्स दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर मोर एंड मोर. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Yeah. उनके आपस में जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, अब इशू ये आता है कि यार अगर वो इंटरेक्शन क्लोज भी हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ दीस मॉलिक्यूल्स दे आर क्रैम्प्ड टू ईच अदर. दे आर क्रैम्प्ड विद ईच अदर. पहले initially when the pressure was more I'm sorry the pressure was less, जब 1 एटमॉस्फेयर था अब ये आपने प्रेशर इंक्रीज करके 100 एटमॉस्फेयर कर दिया. सो इनिशियली व्हेन द प्रेशर वाज लेस तो उस टाइम क्या था, बिकॉज देयर वाज नो इंटरेक्शन दीज मॉलिक्यूल्स वर फ्रीली हिटिंग द वॉल. अभी जैसे ही आपने प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया बिकॉज द मॉलिक्यूल्स हैव बिकम सो क्लोजर टू ईच अदर, उनकी आपस में दोस्ती इतनी ज्यादा हो जाती है कि द फोर्स विद विच दे हिट द वॉल lessens. Am I making sense or not?
Yeah. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर. ये मॉलिक्यूल ये दीवार के साथ टकराया. अब इसको पीछे खींचने वाला कोई नहीं है, बिकॉज इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है. देयर इज नो बडी हु इज पुलिंग हिम दिस साइड. तो वो पूरी फोर्स के साथ दीवार पे टकरा रहा है. बट जैसे ही आपने उसको क्रैम्प स्पेस भी किया, तो जब वो टकराता है या जब भी वो टकराने जा रहा होता है, पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो उसकी जो फोर्स है जिससे वो दीवार पे टकरा सकता है, दैट लेसन्स. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. तो पहले अगर लेट अस अज्यूम वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर के साथ हिट करता था, बिकॉज पीछे को इसको खींचने वाला नहीं है ना. इट इज लाइक समबडी इज पुलिंग हिम टुवर्ड्स दिस साइड. क्योंकि लो एटमॉस्फेयर में एक मॉलिक्यूल यहाँ, लो प्रेशर में एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है. बट जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, उसकी जो फोर्स है विद विच इट हिट्स द वॉल, वो जो फोर्स है वो लेस हो जाती है. वो हो जाती है 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वाई? बिकॉज अब उसको पीछे खींचने वाले काफी मॉलिक्यूल्स हैं. इस वजह से वो फुल फोर्स के साथ दीवार के साथ हिट नहीं कर रहा. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Yes. Yeah. And how does it how does the hitting of molecule on the wall matters to us? वो मैटर इसलिए करता है बिकॉज फाइनली जो प्रेशर था, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर दैट वी वर डिस्कसिंग, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल. तो जैसे कल हम बात कर रहे थे कि यार अगर आपके पास बलून है, वो बलून में प्रेशर ही इसलिए होता है क्योंकि जो गैस है कितनी फोर्स के साथ वो दीवार पे हिट कर रही है. अब अगर आपने पीछे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको इस साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार तू क्यों दीवार के साथ टक्कर मार रहा है, तो हमारे साथ बातें कर, तो ऑफ कोर्स द प्रेशर विल डिक्रीज. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. So if you are able to understand the flow of the lecture, तो अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है तो आपको प्रेशर में कोई एक फैक्टर इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Yeah. ऐसे भी समझ आ रहा जी. है? ओके, अवंतिका, आई विल रीस्टार्ट द मीटिंग इन 30 seconds. या Yes, sir. So basically this is how it looks like, that if the this is where the what Mr. Walls is trying to say, as mentioned in your book. So uh, that if this is a container, so if the pressure is low, then this is molecule 1, this is molecule 2, because pressure is low, so they don't have any interaction with each other. So this molecule will hit with all its force on the wall of the container. And if we increase the pressure, so basically we'll be increasing the pressure. Basically we'll be increasing the pressure by pushing the piston, Mr. CB. Is it making sense? जी. So initially the piston was here. Let us try to look at like this. So initially the piston was here. So that is why the let me write it like this. Yeah. So initially the pressure was 1 atmosphere. The piston was in this position. So this was molecule 2, this was molecule 1, and molecule 1 and molecule 2 had no interaction. So molecule 1 hit the wall of the container with all its force. But now when you have increased the pressure, so the pressure becomes, let us say, 100 atmosphere. But now this molecule and this molecule, they are close together. Miss Avantika, is it making sense? Yeah. अभी ये जब इस दीवार पे हिट करेगा तो पूरी फोर्स से नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इसको पीछे खींचता रहेगा. Am I making sense? Yeah. अरे सिंपल एग्जांपल है यार. दिस वन इज अ बैचलर, या दिस टू इज आल्सो अ बैचलर. सो अभी ये जाके पूरा मतलब सिटी में पार्टी कर रहा है, मजा कर रहा है, बिकॉज इसको कोई पीछे खींचने वाला नहीं है. बट यू मैरी दिस गाय, नाउ दिस पार्टिकल इज मैरिड. अभी उसकी बीवी उसको फोन करके बोलती रहेगी कब आओगे घर, कब आओगे घर. मिस अवंतिका, एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. तो हाँ, तो अब ये इसके जो पार्टी डेज है वो तो ओवर हो गए ना वन के. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. तो उसका जो क्या नाम है इसका, आइडियल गैस बिहेवियर है, वो तो जाता रहा ना. एम आई मेकिंग सेंस? सो दैट इज Yeah. व्हाट मिस्टर वैंडरवॉल सेड कि यार क्योंकि अब जो हमें ये जो प्रेशर हम एज्यूम कर रहे थे, ये प्रेशर तो कम होने वाला है. इसको सपोर्ट करने के लिए हमें एक फैक्टर लगाना पड़ेगा.
जिससे कि जो पी है वो फिर से ठीक हो सके। वैसे भी समझ आया? जी ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन वी। वी में क्या होता है यार? वी कैसे चेंज हो जाता है कि व्हेन वी इज मोर, सो ये 1 लीटर है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, 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 ठीक है? तो ये जो मॉलिक्यूल ऑफ ऑल दीज, द वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस वुड बी से 1/10,000 लीटर। तो जैसे ही आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया, अभी लेट अस अज्यूम कि आपने जो वॉल्यूम है वो ऐसे डिक्रीज कर दिया, अब ये जो वॉल्यूम है लेट अस अज्यूम 1/100 लीटर है, बट मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहेगा ना? मिस्टर वंतिका, एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. इनिशियली मॉलिक्यूल का जो कंट्रीब्यूशन इन द टोटल वॉल्यूम, दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग लास्ट टाइम, मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन अपॉन द टोटल वॉल्यूम वाज 1/10,000 अपॉन 1। और अब क्या होगा? 1/10,000 upon 1/100, and because our mathematics is good, we can understand that this would be equal to 1/10,000 into 100 is equal to 1/100। तो फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया ना यार? पहले जो फ्रैक्शन थी वो 1/10,000 थी, अब जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। सो अगर आप गैस का वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाली है। एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. इसलिए वो जो वॉल्यूम का फैक्टर है उसमें से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग, एंड दैट इज व्हाई मिस्टर वंडरवॉल सेड कि वी में से कुछ निकालना पड़ेगा और प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़ेगा। एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. यस तो अभी आपको क्या करना है, मतलब अभी नहीं, एक तो फिर से ये जो, आई एम सॉरी यार, ये कैन यू सी द पीडीएफ और इज इट गॉन ब्लैक? पीडीएफ देख सकते हो, ब्लर हो गया, वो फ्रीज हो गया। ब्लर हो गया, एक सेकंड यार, 1 सेकंड। So यार एक तो immediately after this lecture, मतलब at least before the next lecture, you'll have to read this non-ideal behavior एक बार फिर से, so that you know things that we have discussed today make sense. That is one thing that you'll have to see. मैं अभी ये नहीं डिस्कस कर रहा सिग्निफिकेंस एंड यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ये फिर से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट व्हाट इज योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 5.36, एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज 5.36, और ये वाले जो 3-4 ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, दीज 3 न्यूमेरिकल्स, मिस्टर वंदिका, वुड यू बी एबल टू डू दैट? Yeah, sir. और एक और लेक्चर लगाएंगे यार ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, ये थोड़े से टेढ़े टॉपिक है एक्चुअली, करने को वी कुड हैव स्किप्ड दिस, बट आई रियली वांट यू टू यू नो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, और ये सब आप सोचना शुरू करें, सो दैट वंस वी स्टार्ट, और पिस्टन्स आपको दिखने शुरू हो, सो दैट वंस वी स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, तो आपके मतलब दिमाग में ऑलरेडी ये सब चीजें कि प्रेशर डिक्रीज कैसे हो रहा है, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाए। एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. ठीक है, नाइस।